एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्री बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है और ये पेपर अपन आज सॉल्व करेंगे। पहला जो क्वेश्चंस है वो दैट फाइंड एचसीएफ ऑफ 405 एंड 420। इनका अपन को एचसीएफ फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द फैक्टर। सो फैक्टर वी हैव टू दिस इज डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3 and 10, so 3 3 are 9 and 3 5 are 15. Again we can divide by 3, 3 4 are 12 and 3 5 are 15. Again divide by 3, 3 3 3 5 are 15. Okay, and again divide by 3, 3 5 are 15 and 5 here is 1. So same as it is, we will find the factor of 420 and here we can divide this by 3. 3 1 ja 3, the remainder is 1, so 3 4 ja 12 and 0. Then we will divide by 2. Okay, 2 means we get 70. Again divide by 2, we get here 35. Then we divide by 5, 5 7 ja 35, 7 1 ja 7. Look here, we will get here 405. 405 we can write here 3 into 3 into 3 into 3. How many? 1 2 3 4 and 5. And here 420 we can write 3. Look here, 3 only one time, and 2 2 we have 2 time, 2 into 2 and 5 and 7. Okay. Look here SCF we have to find. SCF means highest common factor. So what is common in these two? We have to check. Common are 3 and 5. These are common. So we can write 3 into 5 is 15. So अपना जो SCF है वो SCF आ गया 15. All of understand? This is very simple question. अपना जो second question है, write whether the rational number 17 by 8 will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. So look here 17 by 8 we have, and 8 को अपन इससे 2 into 2 into 2 we can write. और यदि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आता है, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आता है, तो अपन इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे. सो इट है टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion. All of you understand? This is terminating decimal expansion it will have. So this is very simple question. Third question, explain why 5 into 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number. तो अपन इसको चेक करना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि क्यों है, वो चेक करना है. तो यहाँ पर टर्म्स कितनी है? एक टर्म्स तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक तो एक टर्म है और सेकेंड टर्म ये है, और इन दोनों टर्म में से 13 कॉमन आ रहा है. 13 क्या है? कॉमन है. तो पीछे क्या रहेगा? 5 इंटू 7 इंटू 11, और ये 13 तो बाहर आ गया, प्लस और ये 13 बाहर आ गया, तो पीछे क्या रहेगा? 1 रहेगा. और यहाँ पर 13 इसका इज ए फैक्टर अदर देन 1 and itself. So it is composite number. All of you understand this? तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 13 इसका फैक्टर है. If alpha and beta are zeros of polynomial 5x square minus 7x plus 3, then find alpha plus beta. ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. जो अपन को ये 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 दे रखा है ना, इसका ABC फाइंड करेंगे. A इज़ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट इज़ 5, सो वी कैन राइट 5. B इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, सो दिस इज़ माइनस 7, and C is here 3. And we know already the formula for alpha plus beta. Alpha plus beta is minus B by A. So minus is here, and B is what is minus 7, and A is here 5. Minus minus plus, so 7 upon 5 is our answer.
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई एन 7/5 वी गेट द आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्स एंड वाई इफ 2x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। So look here, we can write this 2x plus y equal to 14 and second is x minus y equal to 4. We will use here elimination method. In elimination method we will add here. So if we add y and y cancel, 2x plus 1x is 3x and 3x equal to, we get here 18. So x equal to 6 and x equal to 6 put in equation 2. Okay, so place of x minus y equal to 4, place of x we put 6 minus y equal to 4. You interchange 4 and y, this 4 will transfer, so minus 4 and y is transferred to right hand side, minus y become plus y. 6 minus 4 is 2, so we get y equal to 2. So answer we can write x equal to 6 and y equal to 2. Find a and b if linear equation x minus 3y minus b equal to 0 and ax minus 6y minus 14 equal to 0 has infinite solution। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला है वो अपने पास में है। पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए, यदि फॉर्मूला आता है तो तुम लोग बिल्कुल इजीली कर सकते हो। इनफाइनाइट फॉर्मूले के लिए मालूम है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये फॉर्मूला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहले अपन को फॉर्मूला आना चाहिए और फिर फॉर्मूले में ये सब पुट करना है। तो a1 कौन है, a1 यहाँ पर 1 है, a1 इज़ 1, so we can put here place of a1 is 1 and a2 is here a and b1 is minus 3 and b2 is here minus 6 and c1 is here minus b and c2 is here minus 14. So this minus minus plus and this also minus minus plus, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6. Now we will take first and second. So if we take first and second, we get here cross multiply you can do direct, so we get a equal to 2. Okay, and then you take second and third ratio, take second third means this ratio, you cross multiply you get 14 equal to 2b, so 2b equal to 14, so we get here b equal to 7. So we can write answer a equal to 2 and b equal to 7. A equal to and b equal to 7 is our answer. Let ABC triangle ABC and triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. EF equal to 15.4 centimeter. Find BC. So अपन को यहाँ पर AST थ्योरम आनी चाहिए। By AST थ्योरम that triangle ABC is similar to triangle DEF. We can write here area of triangle ABC upon area of triangle DEF equal to area of ABC means we will take here BC side and here EF, so EF side, so we can write BC square upon EF square. So area of ABC we know here is 64 centimeter square, area of DEF equal to 121 centimeter square and BC square means we have to find here and EF square means we get 15.4 centimeter and whole square. We will take square root, is when we take square root we get 8 and here 11 equal to BC upon 15.4. Now you do the cross product, we get here 8 into 15.4 equal to BC into 11. So we get here BC equal to 8 into 15.4 upon 11. 11 1 ja 11, 11 4 ja. Now you multiply 11.2 centimeter we get this side. All of you understand this? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है if cos A equal to 12 upon 13 find the value of tan A. Look here, cos A equal to 12 upon 13 and cos we know it is base upon hypotenuse. So we can write if base equal to 12 and hypotenuse equal to 13,
Then by Pythagoras theorem we can write perpendicular equal to root h square minus b square. This we can write 13 square minus 12 square, and 169 minus 144, this is root 25, and this is 5. So we get perpendicular is 5. We have to find here tan A, and tan A we know it is a perpendicular upon base, and perpendicular we get here 5, and base is 12. So 5 upon 12 is the answer of tan A. The angle of elevation of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. Look here, this is a tower, and on the ground we have a point is here P. The angle of elevation of top of tower, this is top of tower, and from a point on the ground, point is P. Here top is A, and this is B, and 30 meter away from the foot of tower means this distance is 30 meter. Find the height of tower means height of tower we suppose h. Okay, now here this is we check here, this is base is here 30 meter, and this is a perpendicular, and the perpendicular is here h. So we know tan theta equal to perpendicular upon base. Okay, and tan theta is here 30 degree. This is given here 30 degree. So we can write here 30 degree equal to perpendicular is h and base is 30. Tan 30 we should know this is value is 1 upon root 3 and h upon 30. फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रूट 3h इक्वल टू 30 आ जाएगा. ओके, फिर h इक्वल टू 30 अपॉन रूट 3 आएगा. तो इसको अपन रेशनलाइज कर लेंगे, रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो h इक्वल टू 30 रूट 3 अपॉन रूट 3 हो जाएगा. इनको कट करेंगे तो tan रूट 3 आ जाएगा. तो tan रूट 3 मीटर इसका जो हाइट ऑफ जो टावर अपन को फाइंड करनी थी वो tan रूट 3 मीटर आ गई. ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस. देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द रेशियो इन विच सी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी. देखो ए बी लाइन ये रही और इसको सी डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो चेक करना है. इसके लिए पहले ये चेक कर लो कितने पार्ट्स है यार, 1 2 एंड 3 पार्ट्स दिस साइड वी हैव, एंड सी के जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर कितने पार्ट है उसमें देखना है, 1 और 2 पार्ट है. तो ये 3 पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में सी के और राइट हैंड साइड में 2 पार्ट्स है, तो 3:2 आ जाएगा. सी डिवाइड ए बी इन 3:2. सिंपल सा आंसर है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. पेरीमीटर सर्कल का मीन्स सर्कमफेरेंस देखना है. सर्कमफेरेंस और एरिया ये दोनों इक्वल है. सर्कमफेरेंस फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया फॉर्मूला होता है πr². देखो पाई से पाई कट कर लेते हैं, एक r कट कर लिया तो r इक्वल टू 2 आ गया. r इक्वल टू 2 मीन्स हियर वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल. सो रेडियस इक्वल टू 2 यूनिट वी कैन राइट. दिस इज आवर आंसर. ऑल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर. इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस अपन इसकी हाफ कर देंगे. 14/2 मीन्स 7 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो जाएगी. और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला आना चाहिए अपन को. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला रहेगा वो एरिया वो 1/4 πr² लिखेंगे अपन, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², उसका 4th पार्ट करना है. तो ये 1/4 पाई की जगह 22/7 लगा देंगे और r की जगह 7 सेंटीमीटर मीन्स 7 × 7 एंड दिस विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर. 7 से 7 कट कर लेंगे, इसको 2 आ गए और ये 11 आ जाएगा. 2 से कैंसिल कर दिए तो अपने पास 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको डिवाइड कर लो. 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 एंड 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो कोई भी आंसर लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है. दिस इज वेरी सिंपल.
A chord of a circle of radius 20 centimeter subtend a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment. देखो यहाँ पर जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और राइट एंगल कर रहा है, मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है। और मेरे माइनर सेगमेंट का ये निकालना, और पाई भी ये यूज़ करना 3.14। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए अपन को। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसमें सब अपन को पुट करना, पाई की जगह 3.14 रख देंगे, और पाई आर मीन्स 20, सो 20 इंटू 20, ओके। एंड थीटा इज ईयर 90 अपॉन 360 और माइनस 1/2 आर स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20 और साइन 90, ये सब होगा। तो इसको कट करेंगे, 9 4 जा 36, फिर 2 से कट करना, 2 10 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, फिर इस 2 को भी कट करेंगे 10 आएगा। देखो 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 314 आ जाएगा, और यहाँ से इसको कट किया 10 आ गया। और साइन 90 1 होता है, साइन 90 की जगह 1 लगा देंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो गया। तो देखो 200 और इसमें से माइनस करेंगे तो 114, और यूनिट इसका सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो अपन को फाइंड करना था वो आ गया 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। फाइंड द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड वी नो इट इज़ ए क्यूब, और वी कैन राइट साइड क्यूब, and this is given 64 centimeter cube. This we can write a equal to, we can write here 4 4s are 16, 16 4s are 64, so 4 power 3 we can write. This is a power 3 is 4 power 3, so we get here a equal to 4, means the side each side of the cube we get here 4 centimeter. Now look here, you will have the cube, this type cube you will add, this type cube you can add, 2 cube you will add. So this is 4 centimeter and 4 centimeter, breadth is 4, height is 4. So we can write here length is 4 plus 4 is 8 centimeter, and breadth is 4 centimeter, and height is equal to 4 centimeter. So this type we can write the length, breadth, height only. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड टैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड। देखो रेड फेस कार्ड के अंदर जो एक तो डायमंड के जो कार्ड होते हैं, डायमंड के कार्ड वो रेड कलर के होते हैं, डायमंड जो होता है ना वो रेड कलर का होगा, और जो एक दूसरा जो हार्ट के जो कार्ड्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। ये दोनों रेड कलर के होते हैं, दोनों एक्चुअल में ऐसे 13 होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है कि फेस कार्ड, तो फेस कार्ड इसके अंदर 3 होते हैं और इसके अंदर भी 3 कार्ड हो गए। 3 कार्ड कौन कौन से होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग, ये तीनों कार्ड है वो फेस कार्ड होते हैं। तो 3 and 3 6 हो गए, टोटल जो कार्ड है वो 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड विल बी इक्वल टू, टोटल देखो जो कार्ड है रेड फेस कार्ड वो है 6 है, और टोटल जो कार्ड है वो है 52। तो इनको अपन कट भी करेंगे तो 2 की टेबल से कट कर सकते हैं, और 3/26 आंसर, ये अपन आंसर लिखना है। 16 क्वेश्चन है, इफ़ द क्लास इंटरवल एंड रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर गिवन देन राइट द फॉर्मूला फॉर मोड। इसमें मोड का फॉर्मूला अपन को आना चाहिए, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 करेंगे, और फिर नीचे वापस 2F1 आएगा, 2 आ रहा है इसलिए 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक F0 सब्ट्रैक्ट होगा, एक F2 सब्ट्रैक्ट होगा, और इनटू H आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपन को मोड के लिए लर्न रखना है।